Today's topic is Miller effect. Miller effect. In Miller effect, we will study the capacitance, or you can say that the impedance that is connected between the input of a transistor. Let's see. We consider there is a transistor, a common emitter transistor. We are considering this is the base terminal. This one is the collector terminal, and this one is the emitter terminal. There lies a capacitance in between these two junctions. First of all, we have two junctions, that is the base emitter junction. Base emitter junction is forward bias, while collector base junction is reverse bias. Now, for a transistor to act like an amplifier, we supply an AC type of signal as an input. So an AC type of signal is supplied as an input to this common emitter RC amplifier, common emitter transistor. What is the Miller effect? The Miller effect is the capacitance or impedance which lies in between these junctions. So there are two types of internal capacitance, CBE, lying between the base and the emitter, and CBC, the capacitor which is lying between the base and the collector. First of all, the capacitor which is lying between base and emitter. Base and emitter, it holds the charge stored in it for a microseconds. Both these capacitors, these internal capacitors, are of microfarad. This capacitor CBE, ये कैपेसिटर क्या करेगा कि जब आप करंट सप्लाई करेंगे तो फॉर द टाइम बीइंग ये कैपेसिटर उस चार्ज को स्टोर करके रखेगा, जबकि ये CBC, ये कैपेसिटर इट इज लाइंग बिटवीन द कलेक्टर बेस एंड कलेक्टर जंक्शन, जो कि रिवर्स बाइस होता है. तो उस केस में ये आपका क्या करेगा, जो कुछ पोर्शन आपका आउटपुट में जाने से पहले उसको रेजिस्ट करेगा. जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि फॉर एन एम्पलीफायर आपका जो चार्ज है वो विद टाइम डिले ट्रांसफर होता है आउटपुट में, और उसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है. अब वो डिस्टॉर्शन किस वजह से, क्योंकि हम इस सर्किट में बाईपास कैपेसिटर्स यूज करते हैं. बाईपास कैपेसिटर्स जो हैं वो इस डिस्टॉर्शन को, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिस्टॉर्शन वी सिंप्लीफाई दैट सर्किट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये दो कैपेसिटर्स जो हैं ये लाई कहाँ करते हैं, इट लाइज इन द इंटरनल ट्रांजिस्टर. इंटरनल कैपेसिटर, इट contributes in the internal impedance of the transistor. ट्रांजिस्टर की इंटरनल इंपेडेंस में ये कंट्रीब्यूट करे. अब इस ट्रांजिस्टर के अलावा एक और आपका रेजिस्टेंस होती है, एक तो रिएक्टेंस ऑफ CBE and CBC, and the third one is resistance which is ROE, that is the reciprocal of आउटपुट एडमिटेंस. ये इसकी वैल्यू जो है इट इज वेरी लार्ज. सो हम ये कंसीडर करते हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल है, ये जो आउटपुट इम्पिडेंस है, और आउटपुट एडमिटेंस है, ये इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है. और ये वैल्यू किसके ऊपर, ये किसका फॉर्मूला है, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कलेक्टर करंट ओवर the voltage VCE. If you could remember कि हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम ग्राफ बनाते थे, that the graph like this was
due to we select different VE voltages and there was IC current corresponding to that. तो ये वो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है कि कब आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये जो फैक्टर है that is the output admittance, it is so large that its reciprocal becomes small, negligible. So the combined effect of reactances of the capacitor CBE, that is lying between the base and emitter, and this capacitor reactance of the capacitor CBC, that is the reactance lying between the junction, base and collector, as well as this small resistance ROE, all these combined effect is known as Miller effect. और मिलर इफेक्ट के लिए हम ये जो कंसिडर करते हैं, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस है, इंटरनल इम्पिडेंस, it has a significant role for high frequencies. Now let's move on towards the equivalent circuit. अब equivalent circuit हम इसमें ड्रॉ करते हैं. Equivalent circuit, first of all, as you know that each transistor has an internal resistance. So first we start the circuit by drawing the internal resistance, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं बाय, क्योंकि ये बेस और इमिटर के दरमियान होता है, तो इसको RBE की फॉर्म में ये वही चीज है जो HIE की फॉर्म में आप लिखते थे, ये आप RBE की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सेम चीज. नेक्स्ट, इस बेस और इमिटर के दरमियान कैपेसिटेंस CBE लाइक. ठीक है, दिस इज the emitter terminal. Now between the base and the collector lies CBC, the second capacitor. ये इंटरनल कैपेसिटर, दो इंटरनल कैपेसिटर्स हैं, और आप ये कनेक्शन देख सकते हैं, ये एक दूसरे से इन सीरीज. नेक्स्ट आपका आ जाएगा द करंट सोर्स, जिसको GMVBE की से रिप्रेजेंट करते हैं. और lastly the resistance which is lying RO. इसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, इसके अक्रॉस आपको V नॉट आउटपुट मिलेगा. ठीक है, सो ये हम कंसीडर करते हैं एक इन बिटवीन कनेक्टिंग पॉइंट. अब कंसीडर करें यहां से करंट सप्लाई हो, ये करंट बेस की तरफ जा रही है, बेस करंट हम कंसीडर करें. ये करंट जब यहां से मूव करती है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनल रेजिस्टेंस में से पास होने की करंट I से रिप्रेजेंट. उसके बाद इसी का एक और पोर्शन दैट इज I1 वो बेस से पास कर, इसमें से करंट पास करता है, और उस करंट को हम I3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, I3 से रिप्रेजेंट कर दिया. अब यहां पे दैट इज द कलेक्टर पॉइंट एंड बेस, कलेक्टर और बेस के दरमियान बाइसिंग कैसी है, रिवर्स बाइसिंग. तो यहां पे करंट जो है दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्जेस, ये I2 से रिप्रेजेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द Kirchhoff फर्स्ट रूल, sum of all the current flowing towards the point of junction is equal to the sum of all the current flowing away from the junction. अब यहाँ पे आप देखें I1 and I2, अगर इस X पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं, ये X पोजीशन एक मोटिंग पॉइंट है करंट के लिए, तो इस X पोजीशन के लिहाज से हम कह सकते हैं कि I1 and I2 are approaching towards this single point or the junction X, while I3 current is flowing away from this.
So according to the first Kirchhoff rule, I3, sum of all the current flowing away from this junction is equal to sum of all the current flowing towards that junction, that is I1 and I2. Now we will determine each of these currents. First of all, हम कंसीडर करते हैं I3 करंट. I3 करंट जो कि पास कर रहा है CBE कैपेसिटर. So यहां पे हम लिखते हैं I3 according to the Ohm's law. According to the Ohm's law, I3 की वैल्यू क्या है? पोटेंशियल उसके अक्रॉस क्या है? यहाँ इसके क्रॉस पोटेंशियल, बेस एंड इमिटर के अक्रॉस VBE इज द पोटेंशियल. बेस और इमिटर के दरमियान का पोटेंशियल VBE होगा, divided by the reactance of CBE. And as you know, any reactance is equal to omega C. So we will be utilizing the same. यहां पे हम पुट करते हैं VBE divided by 1 over omega CBE. ये आपका आ जाएगा ओमेगा CBE VBE. ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया फॉर द करंट I3 which is flowing away from this junction point. ठीक है, जो कि इस कैपेसिटर में से पास कर रहा है. नाउ next we have to find another current. अब another current जो आपने फाइंड आउट करना है, वो करंट आपका कौन सा है? करंट दैट इज I2 which is flowing across this capacitor CBC. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें से जो फ्लो कर रहा है हम उसको लिखते हैं I2 will be equal to, यहां से स्टार्ट होता है और यहां उसका एंड. ये पॉइंट जो है वो किसके लाइक करता है? अगर इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज V0, तो यहां भी V0 होगा. तो V0 माइनस इस पॉइंट पे क्या है? बेस और इमिटर का सेंटर पॉइंट. तो ये क्या है? VBE का पॉइंट. तो V0 माइनस VBE. ठीक है, डिवाइड करेंगे अगेन किससे? द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर CBC. 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा CBC. ये आपका आज बन जाएगा ओमेगा CBC V0 माइनस VBE. अब यहां पे V0 हमें चाहिए कि जो भी आपने यहाँ पे रिलेशन लिखा है वो उसमें सारे इनपुट के, क्योंकि मिलर इफेक्ट बेसिकली इनपुट के ऊपर इम्पिडेंस का इफेक्ट मुहैया करता है. इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इम्पिडेंस व्हिच इज लाइंग एट द इनपुट साइड. सो V0 को हम रिप्लेस करेंगे विद दिस. एज यू नो दैट द गेन इज equal to V0 the output voltage and VBE the input voltage. तो यहां से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और I2 की हम वैल्यू को लिख सकते हैं जहां पे आप इसको लिखते हैं I2 will become ओमेगा CBC. V0 की जगह हम लिखेंगे गेन एंड द बेस इमिटर वोल्टेज माइनस. ठीक है, अब ये आपने बेस इमिटर वोल्टेज इसमें लिख दी. नेक्स्ट में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा ओमेगा CBC VBE
गेन माइनस 1 की फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास करंट I2 की वैल्यू। अब इसमें I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस रिलेशन को आप रीअरेंज कर ले इन द फॉर्म ऑफ I1, सो यू कैन डिटरमिन, अगर इसको कर ले, I1 is equal to I1 is will be equal to I3 minus I2. So you have already determined value of I3 and I2. Simply हम इसमें put करेंगे, यहाँ से erase कर देती हूँ। I3 की वैल्यू is equal to omega CBE and VBE. For I1, that is equal to I3 minus I2. I3 minus I2 can be omega CBE VBE minus omega CBC VBE gain minus 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर I1 ओमेगा एंड VBE कॉमन निकाल लेते हैं, CBE minus CBC AV minus 1. As you already know that the mid frequency gain is equal to GMR. रिप्लेस कर देते हैं, VBE CBE minus CBC minus GMR minus 1. And what is this? This is transconductance. So नेगेटिव साइन अगर बाहर की तरफ आ जाएगा, यहां से कॉमन लेके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हम रिलेशन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस GMR. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी, यू कैन अगेन रीअरेंज इट। 1 इसको हम नीचे ले जाते हैं, CBE plus CBC plus 1 plus GM। यहां पे ये आपने कर लिया क्लियर। नेक्स्ट ये VBE ओमेगा VBE की फॉर्म में है, हम इस VBE को इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। VBE बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, इनपुट रेजिस्टेंस आपका R होता है, ठीक है, जैसे VBE इज इक्वल टू IR। I1 is the input current, और R इसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में, तो यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं I1 डिवाइडेड बाय ओमेगा I1 R I, ये इसमें से कैंसिल हो गया, ये आपके पास रिलेशन आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख लेती हूँ, आपके पास रिलेशन आ गया है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा RIE इज इक्वल टू CBE प्लस CBC 1 प्लस GMR। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसको आप देखिए, तो 1 ओवर ओमेगा R इज द रेजिस्टेंस एंड साथ उसके ओमेगा है, तो ये एक कैपेसिटेंस की फॉर्म बन रही है, विच इज द इंटरनल कैपेसिटेंस, एंड इंटरनल कैपेसिटेंस is a combined effect of CBE, CBC and
the resistance. So the multiplication of all these capacitance is known as the Miller effect, and this is the relation for the Miller effect. Or for high frequency, it has a significant role. You cannot ignore its role for high frequency. So आपकी आउटपुट जो है वो इनपुट की तरह क्यों नहीं नजर आती? जैसी इनपुट है वैसी आउटपुट क्यों नहीं आती? इट इज ड्यू टू these impedance. These internal impedance has a significant effect which reduces the output. So this was all about the Miller effect and its response, significant response at high frequency.